students, in the previous video we were discuss about the introduction of this chapter. Operating system, types of operating system. There are two type of operating system. First, single user operating system and second, multi-user operating system. Then in this video I will explain you our next topic, that is Microsoft Windows. Let's start our topic. Microsoft Windows or Windows is the most popular operating system available for modern personal computers. Microsoft Windows और Windows एक most popular operating system है जो modern personal computers में available होता है. Microsoft created the Windows operating system in the 1980. Microsoft ने Windows operating system 1980 से बनाना start किए थे. Over the year there have been many different versions of Windows और अभी के टाइम पे बहुत सारे Windows के versions हैं like Windows 95, Windows 98, Windows XP. The most recent version are अभी के टाइम पे जो new versions हैं वो कौन से हैं हमारे Windows 7, Windows 8 and Windows Vista. Then students, here are some logos of different type of or different versions of Windows operating system. First, Windows 1.0 1985. Second, Windows 3.1 1992. Third, Windows 95 1995. Next, Windows XP 2001. Next, Windows Vista 2006. Next, Windows 7 2009 and last Windows 8 2012. Then next point, when we switch on a Windows based computer, जैसे ही हम लोग Windows based computer on करते हैं, the Windows operating system gets loaded on the computer's memory. Windows operating system computer की memory में load होना start हो जाते हैं. This is known as booting, जिसे हम लोग booting कहते हैं. During this time, इसी टाइम में we can see the Windows logo shaped like a flag, यानी एक फ्लैग की शेप का विंडो लोगो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है and the message starting Windows, और एक मैसेज दिखाई देता है starting Windows. Then students look at the figure 2.6. इस पिक्चर में एक फ्लैग लाइक यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये दिख रहा है हमारा, ये हमारा फ्लैग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो का लोगो है और एक मैसेज दिखाई दे रहा है हमें स्टार्टिंग विंडोज. Then our next topic, that is desktop. Let's start our topic. After Windows has finished loading, जैसे ही हमारी विंडो की लोडिंग फिनिश हो जाती है, the welcome screen appear, एक welcome screen appear होती है. This is also called the log on screen, जिसे हम लोग log on screen कहते हैं. After logging in और login complete होने के बाद, the first screen that appear is called the desktop. login complete होने के बाद जो first screen हमारी कंप्यूटर पे appear होती है उसको हम लोग कहते हैं desktop. It has several small pictures. इसमें कुछ small pictures होते हैं जिसे हम लोग icons कहते हैं. The start button and the task bar, यानी जैसे विंडो हमारी ओपन होती है उस पर कुछ small pictures दिखाई देते हैं जिसे हम लोग icons कहते हैं और start button और task bar हम लोगों को दिखाई देता है. Then students look at the picture. This is the picture of the desktop. यानी जैसे हम लोगों की लॉगिंग कंप्लीट होगी कंप्यूटर की तो कुछ इस तरीके की पिक्चर हमें दिखाई देगी जिसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं और इसमें कुछ हमारे स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देंगे लेफ्ट साइड पे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आइकन्स. और स्टार्ट बटन दिखाई देगा हमें एंड टास्क बार. देन नेक्स्ट पॉइंट, राइट क्लिकिंग ऑन अ ब्लैंक एरिया on the desktop opens a pop-up menu. यानी डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे यानी खाली एरिया पे अगर हम लोग माउस की हेल्प से राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर होगा जिसे हम लोग कहते हैं पॉप अप मेन्यू. दिस पॉप अप मेन्यू गिव्स अस द ऑप्शन
टू चेंज द वे द डेस्कटॉप लुक्स, यानी जैसे ही पॉपअप मेन्यू हमारा ओपन होगा, क्लिक करेंगे, जैसे हमारा पॉपअप मेन्यू ओपन होगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो जिनकी हेल्प से हम लोग डेस्कटॉप के लुक को चेंज कर सकते हैं। यानी डेस्कटॉप पे जो पिक्चर वगैरह लगे हुए हैं, अगर हमको चेंज करना है तो हम लोग इस ऑप्शन की हेल्प से या इन ऑप्शन की हेल्प से उसके लुक को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइजिंग द डेस्कटॉप, इसे हम लोग पर्सनलाइजिंग द डेस्कटॉप कहते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेस्कटॉप्स आइकन्स। लेट्स स्टार्ट। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप पे कुछ स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देते हैं जिसे हम लोग आइकन्स कहते हैं। ईच आइकन मे रिप्रेजेंट अ फाइल, अ फोल्डर, अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। हर एक आइकन किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम आइकन्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। फर्स्ट, डाउनलोड, यानी कुछ भी हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसका आइकन इस तरीके से होगा। पिक्चर्स का आइकन इस तरीके से होगा। MS वर्ड का आइकन इस तरीके से होगा। MS पेंट का आइकन इस तरीके से होगा। रिसाइकल बिन का आइकन इस तरीके से होगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन इस तरीके से होगा। Then our next topic, that is taskbar. Let's start our topic. The taskbar is a long horizontal bar located at the bottom of the screen. Taskbar एक long horizontal bar है जो हमारे screen के bottom यानी नीचे की तरफ located होता है। The taskbar contain, taskbar में और कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन से options available होते हैं। First option, द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, यानी टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमारा स्टार्ट बटन लोकेटेड होता है। सेकेंड, द क्लॉक विच शो द टाइम, एक क्लॉक होती है हमारी जो हमें टाइम बताती है। इफ़ यू ब्राउज द माउस ओवर द क्लॉक, जब हम लोग क्लॉक पर अपना माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे, इट शोज द करेंट डे एंड द डे। जैसे हम लोग क्लॉक पर माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे तो हमें करेंट डे यानी उस दिन जो दिन है उस दिन का नाम लिखा हुआ दिखेगा और करेंट डेट हम लोगों को लिखी हुई दिखाई देगी। देन थर्ड, द स्पीकर वॉल्यूम कंट्रोल्स आइकन, स्पीकर की वॉल्यूम को कंट्रोल करने वाला आइकन दिखाई देगा। फोर्थ, वेरियस एप्लीकेशन लॉन्चर्स एंड शॉर्टकट्स विच आर यूज टू ओपन अ प्रोग्राम और अ फोल्डर, किसी भी प्रोग्राम और किसी भी फोल्डर को ओपन करने वाले बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्चर्स और शॉर्टकट्स हमारे टास्क बार पर अवेलेबल होते हैं। देन फिफ्थ, आइकन्स फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर करेंटली एक्टिव और रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, यानी जिस भी प्रोग्राम पर हम लोग कंप्यूटर पे करेंटली काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम का आइकन भी हमें हमारे टास्क बार पर दिखाई देता है। देन स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। दिस इज द टास्क बार, ये हमारा टास्क बार है। इसमें हमें लेफ्ट साइड पर दिखाई देता है स्टार्ट बटन, देन एप्लीकेशन लॉन्चर्स एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार icons of currently running programs, speaker volume and clock. Then next point, it may also contain other buttons, इसमें और भी हमारे buttons available होते हैं। For example, those which allow users to exchange the language setting, यानी कुछ और भी हमारे icons वगैरह होते हैं contain रहते हैं हमारे task bar पर। For example, those which allow users टू चेंज द लैंग्वेज सेटिंग, यानी कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जो लैंग्वेज की सेटिंग को चेंज करने के लिए होते हैं। और वार्निंग मैसेजेस, और मैसेजेस की वार्निंग के लिए भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द टास्क बार बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। अगर हमको टास्क बार की पोजीशन चेंज करनी है तो हम लोग वो भी चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे चेंज कर सकते हैं, टास्क बार के ब्लैंक एरिया में, यानी जहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है वहाँ पर माउस की हेल्प से हम लोग क्लिक करते हैं। और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एंड देन ड्रैगिंग इट टू एनी ऑफ द 4 एज ऑफ द स्क्रीन, और उसे हम लोग माउस की हेल्प से ड्रैग करके स्क्रीन के 4 एज यानी चारों किनारों में कहीं पर भी उसे लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट want to move the task bar accidentally, लेकिन अगर हम लोग टास्क बार को वहाँ से नहीं हटाना चाहते हैं और गलती से उस जगह पे क्लिक हो गया है, you can lock the task bar
इन एनी ऑफ द पोजिशन, और अगर हम लोग अपने टास्क बार को किसी और पोजिशन पे नहीं करना चाहते हैं, टू लॉक द टास्क बार को लॉक करने के लिए राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार का जो ब्लैंक एरिया है उस पर माउस की हेल्प से राइट क्लिक करेंगे। फ्रॉम द मेन्यू दैट ओपन, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे जो मेन्यू हमारा ओपन होगा, सिलेक्ट द ऑप्शन लॉक द टास्क बार। जैसे ही हम लोग ब्लैंक एरिया पे, टास्क बार पे जो ब्लैंक एरिया होगा उस पर माउस की हेल्प से राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन हमारा अपीयर होगा। कुछ इस तरीके के हमारे ऑप्शन अपीयर होंगे। इस ऑप्शन में इस मेन्यू में एक ऑप्शन होगा हमारा लॉक द टास्क बार पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा टास्क बार लॉक हो जाएगा। यानी एक बार अगर लॉक हो गया तो वो हमारा टास्क बार जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे लोकेट है वहाँ से नहीं हिलेगा। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू मूव योर टास्क बार अगेन, लेकिन अगर हम लोगों ने एक बार लॉक कर दिया है और वापस से हम लोग उसे अनलॉक करना चाहते हैं, यानी हम लोगों को वो टास्क बार वहाँ नहीं चाहिए होकर कहीं और चाहिए, तो हम लोग उसको वापस से अनलॉक कर सकते हैं। You have to unlock it by opening the same menu। हम वापस इस सेम मेन्यू को ओपन करके उसे अनलॉक कर सकते हैं। वापस से सेम मेन्यू हम लोग ओपन करेंगे एंड क्लिकिंग द ऑप्शन लॉक द टास्क बार। वापस से हम लोग क्लिक करेंगे राइट क्लिक, फिर हमारा वापस से ऑप्शन आएगा लॉक द टास्क बार ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे विच रिमूव्स द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू इट। इसके बाद हमारा वापस से हम लोग उस टास्क बार को किसी और जगह पे हम लोग लोकेटेड कर सकते हैं। Then my students, my next topic I will be discussing in my next video. Then thank you.